Hi everyone, I'm Priya Lavani from Mob with Love, and here we are doing a candid conversation happened over coffee with Jeans and Arya. So we are having some sort of random conversations about how the unexplored Buster initiated and how the journey has been all over around. So Harjeet, how are you? I'm good. And you have never been come across Mob before, right? Yeah. So, this is your first ever experience. Have you ever heard about us before? Yes. I'd like to understand what all things you have heard before. My friend got featured into your magazine, Tamanna Jai. Yeah. So from her, I came to know about you, and we were expecting you like few months back in Jagdalpur, and everyone was ready. We all wanted to meet you. Yeah. That time we came across your brand, and we love the concept. How the magazine, something related with Chhattisgarh people. You Yeah. know, we are planning just only Buster edition so that we can, as the way you are sharing it all over digital platforms, we would like to share it over the print platforms. So soon enough, we will be launching the Buster edition too. Yeah, we will be very happy to have Yeah. it in some way. I love to have Unexplored Buster on board. So first of all, I would like to understand what Unexplored Buster is from your perspective. So Unexplored Buster, it just started as a Facebook page Yeah. in 2010 when I was doing my MBA. That time, people used to call me, "Arey, tu to Naxal hai. Tu to," it was a pet name given by my classmates. Naxali aa gaya, Naxali aa gaya. And they have a very wrong notion about the tribal community. Yeah. So I just wanted to break that, with some people, with my classmate from the college. We started Facebook page named as Unexplored Buster in 2010. Uh, तब से we are just going forward and promoting the other side of Buster, which is actually 95-98% part. Natural beauty, culture, and this is how it was happening like that. In 2016, I took a break from my corporate life, Okay. and then I came back here. Buster बोले कि अब अपनी जगह के लिए कुछ करना चाहिए. It has to be our land. Yeah. एंड बहुत शहरों में भागते-भागते ऐसा लगा था कि एक ठहराव की भी ज़रूरत है और मुझे ऐसा भी लगता था कि हमारी जगह में भी स्किल्ड रिसोर्स की ज़रूरत Of होती है. course. So I came back and started Unexplored Bastar as a organization in 2016, and Mm. now it's 9 years. Nice. So, Unexplored Buster is definitely need of an hour. So, what was that moment where you felt like, huh, this is it. That's why I wanted to do this. And that's First one was, it was like कि I've been to every places. मैंने कश्मीर में काम किया. I worked in Uttarakhand. I worked in Northeast states, Kerala, and entire nation got completed. तो अब travel कर लिए, then I realized कि बस्तर as a destination has everything. of course. Be it nature, be it culture, be it archaeology, be it history, it has everything. Yeah. So मैं मेघालय में बैठा हुआ था. मेघालय में मुझे इंस्पिरेशन मिला कि यार व्हाई नॉट आई गो बैक एंड आई वर्क विद. वहाँ पे कम्युनिटी टूरिज्म का कॉन्सेप्ट चलता था. वहाँ पे एक डबल रूट ब्रिज है. वहाँ पे लिविंग रूट ब्रिजेस कहते हैं. उन लिविंग रूट ब्रिजेस को देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि आई शुड कम बैक एंड वहाँ से इंस्पिरेशन कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म का लिया. एंड दैट वाज अ मोमेंट कि देश कंप्लीट हो गया है, सब जगह घूम लिया है, सब जगह का टूरिज्म देख लिया है, एंड आई शुड कम बैक और यहाँ की चीज़ों को अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों को दिखाना चाहिए दुनिया को. Amazing. So, I think when people are going there, अगर बस्तर जा रहे हैं, everyone is going there after taking a break and then वहाँ रुक ही जा रहे हैं. Yes. I've seen that, like with the other friends of mine. I've seen that very much. So, what was your idea जब आपने break लिया आपने have you ever thought of going back to your corporate life or you were just very well prepared that I wanted to do that? अ, बचपन से यही था, इच्छा थी. फर्स्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट एस्पिरेशन जो था वो टूरिस्ट गाइड बनने का था. आई Okay. वेंट टू माय फादर. मैंने बोला कि आई वांट टू बिकम अ टूरिस्ट गाइड. तो उस समय सिचुएशन वाज नॉट दैट राइट, और जब राइट हुआ तो एट द राइट टाइम आई वाज देयर. इन 2000, आफ्टर 2000, 13-14, बस्तर गॉट स्टार्टेड ओपनिंग अप. तो उसी समय पे 2016 आई वाज देयर एंड आई गॉट द राइट पीपल, राइट पार्टनर्स एंड राइट
एनवायरनमेंट जो चाहिए होता है आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो मुझे मिला एंड देन स्टार्ट बस्तर से सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स निकल रहे हैं. या How come that is happening? बिकॉज कभी कोई रीजन जो इतना ज़्यादा नेगेटिव नोशन पे रहता है और इतना पिछड़ा रहता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी वहीं क्रिएट होती हैं। एंड ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग पैशनेट बहुत हैं, वो अपनी जगह के लिए बहुत सारा चीज़ करना चाहते हैं। सबका सेम इश्यू है। जब भी वो बाहर जाते हैं उनको नेगेटिव नरेशंस के साथ ही बात किया जाता है एंड वो हिट करता है सबको। और इतना ज़्यादा आपको वैल्यू भी किया जाता है और इतना अच्छा इकोसिस्टम है स्टार्टअप इकोसिस्टम कि हर एक इंसान दूसरों को सपोर्ट करता है। दिस इज हाउ एवरीवन एवरी स्टार्टअप अगर आपने एक छोटा सा आइडिया भी किया है यू विल गेट अ मेंटर Agreed. एंड यू विल गेट द सपोर्ट, यू विल गेट द लाइमलाइट, एक पीआर जो आपको चाहिए होता है कि बिकॉज यू आर स्टार्टिंग इन बस्तर तो आपको मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ लिमिट होता है, you also have a raw materials there. Yeah. You want to do something on forest bees, you want to do something on craft, you want to do something on, अगर आप नेचर टूरिज्म बेस करना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग, इट्स अ ग्रोइंग मार्केट। Yeah. सो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। Of course. So, Buster going national versus Buster going is international. What is your perspective on it? मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ही जाना चाहिए। बस्तर नेशनल तो पहुंच रहा है, इंटरनेशनल पोटेंशियल है बिकॉज इंटरनेशनल पीपल वांट टू एक्सपीरियंस कल्चर एंड और बस्तर इतना इतना ज़्यादा कल्चरली रिच है। वी हैव सो मेनी ट्राइबल कम्युनिटी, बाइसन हॉर्न मारिया, वो तो स्टेट के सिंबल हैं एंड देश के भी सिंबल है। वी हैव सो मेनी डायलेक्ट्स, वी हैव लोकल मार्केट्स, वी हैव local cuisines, which are, Gordon Ramsay, he, the famous chef internationally, he came to Bastar and made a documentary on Chabla Chiti, red and chutney. So it's, और वो भी बहुत साल पहले, यानी 10-15 साल पहले वो आके गए। सो यहाँ पे बहुत सारी मुझे लगता है कि इंटरनेशनली हमको टैप करना चाहिए और एक निश टूरिज्म पे वर्क करना चाहिए, नॉट द मास टूरिज्म, but we need to focus on making Kerala type of model, making something on Meghalaya type वाला मॉडल और नागालैंड निश टूरिज्म बनाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा कल्चर भी साथ में कंजर्व रहेगा। हाँ. So there are two questions right now that are running around in my mind. One is पहले ना बस्तर में बहुत ज़्यादा foreign tourism था, अभी नहीं है. The other thing is, if the people are going modern, तो वो cultural ideas जो होते हैं, जो the things that are touching the base of people, that is also shifting towards the modernization and everything. So how Boston people are holding that? So these are the two questions if you can answer. या देखिए डेवलपमेंट जो है वो हम कभी, यानी एक डबल सॉर्ड, डेवलपमेंट नहीं भी होना तो उसकी वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देख चुका है बस्तर। Exactly. और डेवलपमेंट होने के साथ में वी आर स्ट्रगलिंग बेसिक विद एजुकेशन, हेल्थ और जो सारी चीज़ें उनका पहुंचना बहुत नेसेसरी है। मुझे लगता है रोड्स के पहुंचना, इलेक्ट्रिसिटी का पहुंचना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। सेकेंड है कल्चर कैसे बचेगा। कल्चर में विथ मॉडर्नाइजेशन प्राइड लॉस्ट हो रहा है, तो कल्चर तभी बचता है जब उसमें प्राइड होता है। हाँ. और प्राइड अभी हम मॉडर्न, क्योंकि अगर हम सब ड्रेसअप होके जाते हैं तो एक इंसान सोचता है कि यार ये कल्चर मुझे फॉलो करना है, वी वांट टू हैव जीन्स और पैंट्स और समथिंग, टी शर्ट्स, ये सारा चीज चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम लोग एक कल्चर को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है बस्तर में सेलिब्रेशन करना। व्हेन वी स्टार्ट, यानी लाइक जैसे आज आपके ने शो पे अगर हमारे पास कल्चर में बस्तर का कल्चर हम शोकेस करना चालू कर रहे हैं तो वो प्राइड बैक होगा। इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, लेकिन वी नीड टू स्टार्ट, और वो कल्चर तभी बैक हो सकता है। अभी सिचुएशन, बिकॉज डेवलपमेंट इज वेरी रैपिड, बहुत फास्ट चल रहा है, तो वहाँ पे कल्चर के जाने के चांसेस बहुत बने हुए हैं। लेकिन शायद टूरिज्म वो बैक कर सकता है और एम्बेसडर्स उसके में बैक कर सकते हैं, फैशन उसको बैक कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों में बैक हो सकता है। लेकिन यस, मुझे लगता है कि 10-15 सालों में बहुत कुछ चले जाना है, तो कैसे भी करके टूरिज्म से शायद हम उसको, आई विल टेल यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ नागालैंड। नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, everyone dressed traditionally and they have the pride, Yeah.
सो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राइड बैक करने के लिए वी शुड हैव सम फेस्टिवल्स Agree. एंड नवरात्रा पीपल गो गरबा करने के लिए बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं। तो एक फेस्टिवल अराउंड पे आप कल्चर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो बस्तर में भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होना I चाहिए। think that could be during Bastar Dashera, right? 100%। And there, like, I have heard there are a lot many stories about Bastar Dashera. If you'd like to share one of the stories here, it would be great. You know, Bastar Dashera is among world's longest festival. Yeah. It's 75 days to 100 something days. सो इतना बड़ा फेस्टिवल तो होता ही नहीं है और इतने ज़्यादा वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ आते हैं एंड एवरी ट्राइबल कम्युनिटी कम देयर एंड दे हैव द जॉय, दे आर द वर्शिपर ऑफ देवी दंतेश्वरी एंड मावली माता। सो इतना अच्छा अमेजिंग वाइब होता है वहाँ पे और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा फेस्टिवल है जो हर एक इंसान को एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये नहीं कि मैं बस्तर से हूँ, आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू अक्रॉस इंडिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर दशहरा बहुत ही यूनिक है अपने कल्चर आइडेंटिटी के लिए। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हर दिन एक नया एक्सपीरियंसेस रहते हैं। तो एवरीवन शुड, और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि हम सबको ये बस्तर दशहरा को एक बहुत बड़े आइडेंटिटी देने की ज़रूरत है। Agree. And there's this one more thing I heard about Rath Yatra, that king goes to the basic level people just to get the approval from that for the Rath Yatra. What's the story behind that? सो वी हैव अ वेरी अमेजिंग स्टोरी। जब जगदलपुर में जब काकतीयाज राज स्थापित नहीं हुआ था, उससे पहले राजा वहाँ पे शिकार करने पहुंचे थे एंड शिकार करने में अपना वो जो छोटा सा रथ जैसा चीजें लेके जा रहे थे, एक जगह पे दे हैव वहां से घोड़े आगे नहीं बढ़ पा रहे। हाँ. तो घोड़े जब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सोचे कि वो घोड़े की तबीयत खराब हो गई। फिर नेक्स्ट डे फिर से गए, फिर नेक्स्ट डे फिर से गए, वो घोड़े आगे नहीं जा पाते थे। तो वहाँ पे पता करा गया, तो वहाँ पे एक पता किया कि यहाँ पे एक मंदिर है, जिसे हम लोग लोकली जो ट्राइबल कम्युनिटी होता है एनिमिज्म पे बिलीव करते हैं, नेचर वर्शिप Okay. करते हैं। हाँ. वहाँ पे जो देवी हैं उनका नाम काचन देवी है और उनके जो वर्शिपर थे वो उनका नाम था जगतू Chak. एंड ही कम्स फ्रॉम अ महारा कम्युनिटी। तो जगतू उनके पुजारी थे, तो उनको बुलाया गया और बोले कि आप मुझे इसकी, आप ये क्यों हो रहा है आप बताएं। तो बोले कि आप, क्योंकि देवी इतनी पावरफुल है कि वो किसी को अलाउ नहीं कर रही है जाने के लिए। तो वो अलाउ करने के लिए जब वर्शिपिंग की गई, तो वर्शिपिंग करने के बाद वो उनका वो शिकार पे जा पाए एंड दैट मोमेंट द काकतीयास दलपत देव decided to establish his राजधानी here, like capital in जगदलपुर। तो जगदलपुर जगतू पुजारी की जग से आता है, दल उनके राजा का नाम दल Okay. एंड पुर, इसके नाम से वो होता है। और अभी भी वहाँ पे एक महारा कम्युनिटी से एक देवी होती हैं जो वर्जिन लड़की होती हैं, बच्ची होती है, वो अपने कांटों की झूले में बैठती हैं और वो राजा जाते हैं, इनको हाथ जोड़ते हैं, परमिशन मांगते हैं, देन ही उनको दशहरा करने की परमिशन मिलती है। वाओ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है। लाइक ये सबको पता होनी चाहिए ये स्टोरी। दैट्स हाउ दैट इज़ यूनाइटिंग ऑल द कास्ट, ऑल द रिलीजन्स हियर। सो द नेक्स्ट इज़, अगर बस्तर एक इंसान होता, तो उसकी क्या क्वालिटीज़, क्या कैरेक्टर्स होते? Slowness, you know, it has people, यानी वहाँ पे जो स्लो है और पीपल जो एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत भागा दौड़ी नहीं है। सो एक आइडेंटिटी मुझे लगता है कि वो स्लोनेस है वहाँ पे। तो अभी टूरिज़्म कैसा है वहाँ का? हाउ पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट? कैसा? टूरिज्म इज गोइंग वेरी वेल, है ना। जो डेटा है इट सेज कि 1 लाख अराउंड टूरिस्ट थे जब हम 2016 में काम स्टार्ट किए थे, वो आते थे और अभी वो अबाउ 9 लाख। सो इन 9 इयर्स इट्स 1 लाख से 9 लाख हो चुका है। इट्स गोइंग 15-20% पर ईयर की रेट से ग्रो हो रहा है एंड इट्स गोइंग अमेजिंग। So I think you are the only one who is handling the entire tourism of there. Yeah, when we started, we were the only one who were acting as a tour operator. Now there are multiple people and हम सब collaborate करके ही काम करते हैं। Nice. So the idea or the dream of yours becoming tour guide has actually come true. Yes. That's great. So the other one is
If anyone is going there, Bastar, for just 24 hours, तो फिर आप क्या बोलोगे उनको करने? 24 आवर्स तो वैसे भी बहुत कम होते हैं, लेकिन यस, दे शुड एक्सपीरियंस Chitrakoot waterfall, which is India's widest waterfall. Amazing. Do the boating. Go to caves. We have longest series of caves after Meghalika. 50 plus caves identified है. तो उसमें से आप एक केव जरूर करें, और तीरथगढ़, कांगेर वैली नेशनल पार्क एंड तीरथगढ़ को आपको करना चाहिए. इन बिटवीन कोई मार्केट आ गया तो मार्केट में जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए ट्राइबल कल्चर. What was your journey has been like? कितनी, of course, this entire area has come up with a lot of struggles for you, right? What was that struggle that you were like, अभी इसके आगे नहीं जा पाऊंगा, but then do you cross that hurdle? You are right. Initially, there was less trust among the community. वो हमेशा एक्सप्लॉइट होते रहे हैं, तो उनको ऐसा था कि कोई ना कोई आ रहे हैं, बाहर के लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने में टुक इयर्स. नाउ पीपल आर ट्रस्टिंग अस, तो वो वहीं पे ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लग गया. और ये टाइम लगता ही है कम्युनिटी के साथ जब काम करते हैं. सो इट वाज द स्ट्रगल, एंड कमिंग फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, Yeah. एंड यू इमीडिएटली आपको एक ऐसा शिफ्ट मिलता है जहाँ पे लाइफ एकदम स्लो है. तो आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से इस लाइफ में आने में ही आपको टाइम लगता है. और दैट व्हेन वी आई स्टार्टेड, उस समय पे तो हमारा स्टार्टअप कल्चर था भी नहीं. Exactly. तो बहुत मुश्किल हो जाता था. आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ स्टार्टअप बैकग्राउंड, और जगदलपुर में वैसे बैकग्राउंड नहीं था. नाउ वी हैव वेरी गुड कॉफी कल्चर अराउंड स्टार्टअप कल्चर. तो वो अब है, लेकिन पहले बहुत स्ट्रगल था, नेटवर्क नहीं मिलता Of था. course. So I think I'm done with my questions. I hope I covered almost everything, but I still have this rapid fire session which I'm doing with everyone, so that it will be a fun conversation with everyone. Yeah. So let's initiate with that. First thing, flora or fauna. What is Bastar rich in Flow. flora? And if you like to explain Bastar in two words, what it would be? Nature, culture. Nice. So how Jeet Singh Arya's characters are redefining themselves by Bastar? Minimalism. Minimalism. Nice. And a story behind the name Unexplored Bastar. Because it's unexplored. What's still unexplored? Everything, almost 70% is unexplored. Nice. So I am done with all the questions. That's really great having you here. I Same get pleasure. Would you like to now share anything about the podcast you are right now in? It was a very good podcast. It's a fun, short, and good. Thank you so much. Yeah, thank That is all. Right. Done. Photo? you. How was it? Amazing. Good. Photo. पता ही नहीं चला टाइम का. तुम कितना मिनट हुआ? ज़्यादा किया नहीं होगा हमने 15 से 20 मिनट से ज़्यादा. हाँ, वैसे सबका 15 to 20 मिनट्स ही रख. सुनते नहीं है ना लोग. फाइट में क्वेश्चन सब अपने मन से पूछी हूँ.